दोस्तों, बेंगलुरु के कुद्दूस साहब ईदगाह में इल्म हुनर का खजाना, मालूमात का समंदर, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का मुजाहिरा देखने को मिल रहा है। इस्लामी तहजीब, इस्लामी सकाफत, इस्लामी तारीख, इस्लामी तहजीब, इस्लामी सकाफत, इस दुनिया के लिए मुसलमानों के कॉन्ट्रीब्यूशंस, साइंस और टेक्नोलॉजी में मुसलमानों के कॉन्ट्रीब्यूशंस, मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों का किरदार, मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों का किरदार, मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी का किरदार, इस तरह कई अहम मौज़ूआत पर कुद्दूस साहब ईदगाह में 2 रोज़ा नुमाइश जारी है। तमाम स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। दोस्तों, इस अहम तरीन नुमाइश के इफ्तिताह के लिए MLA रिजवान अरशद, मिनिस्टर BZ जमीर अहमद खान को दावत दी गई थी, लेकिन कोई भी मुस्लिम लीडर यहां आना जरूरी नहीं समझा। अलबत्ता इसरो के रिटायर्ड सीनियर साइंटिस्ट लक्ष्मी नरसिम्हम ने इस नुमाइश का इफ्तिताह किया। चंद्रयान प्रोजेक्ट से ताल्लुक रखने वाली साइंटिस्ट श्वेता, मशहूर हिस्टोरियन राइटर समीर सिद्दीकी इस मौके पर मौजूद रहे। Then they are only started motivation. Our ultimate goal is sharing knowledge. Okay, without that, we cannot improve and we cannot learn more. To be a part of your, I'm very lucky, I can tell, by seeing these many achievers. Initially, even I also had a dream of becoming a doctor, but I did not find fairer than that. जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक के सदर मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी ने भी यहां पहुंचकर इस नुमाइश का बगौर जायजा लिया। KPCC के वाइस प्रेसिडेंट, रोजनामा पासबान के एडिटर मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ व दीगर अहम शख्सियात यहां मौजूद रहे। इस पूरे इवेंट के रूह रवां फाल्कॉन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन अब्दुल सुभान की अनथक कोशिश मेहनत से ये 2 रोजा नुमाइश मुनाकद की गई है। जी हां, एजुकेशन फील्ड का उभरता चेहरा, नौजवान चेहरा, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के जरिए सोसाइटी को कई डॉक्टर और इंजीनियर देने वाले अब्दुल सुभान की सोच व फिक्र को सलाम। इन्होंने फिक्र मुस्तकबिल के उन्वान के साथ कुद्दूस साहब ईदगाह में एक ऐसा मेगा इवेंट मुनाकद किया है जो मुसलमानों की शानदार तारीख, मुसलमानों की रोशन तारीख, इस मुल्क और दुनिया के लिए मुसलमानों के कंट्रीब्यूशन का आईना पेश कर रहा है। तो दोस्तों, कल यानी 26 जनवरी इतवार इस नुमाइश का आखिरी दिन है। यहाँ दाखिला मुफ्त है और आप सब भी यहां पहुंचकर इस नुमाइश से इस्तेफादा कर सकते हैं। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। We are from Fatal PU College, Jayanagar branch. This admirable masterpiece that you see here, it's nothing but an astrolabe. Now, you all must be wondering what an astrolabe is, right? So, astrolabe was a handheld device used for astronomy, especially during the Islamic Golden Age. Initially, it was first conceptualized by the Greeks, later refined by the Muslim scholars. Muhammad al-Fazari, he was the first Muslim scholar of the 8th century who translated these Arabic letters. Actually, these were in Greek before. He translated them into Arabic and he just refined them. Later, in the 10th century, a woman Muslim scholar, she was very few female astronomers. Her name was Maryam al-Astrolabi. She took the craftsmanship and refined this astrolabe to a next level, mastering the complex calculations of it. Can we have an explanation? Yes. So myself Teski and here are my 2 teammates, Tasbih and Veda. So today we are demonstrating the topic of the map of heaven, which is also known as Kitab al-Karakib al-Sabita in Persian Arabic. So this was invented by Abdul al-Rahman al-Sufi, who introduced 48 constellation of stars, who got to know about this 48 constellations, and till date, there are 3 major constellations which are continued. That is Ursa Major, Ursa Minor and Zodiac signs. So Zodiac signs were invented by Abdul al-Rahman al-Sufi.
But later on, to get to know the person's personality, where it is used, many people believe in getting to know the personality by zodiac signs. That was introduced by Babylonians. So, what Al-Sufi. My name is Musarat Safa and these are my Sabita. The precursor of Pascal Wrangel was influenced by Muslim mathematicians before like Al-Khwarizmi and Al-Khayyam during the 10th century. Everyone, my name is Musaiba Harman. I am from first BSc Science B section. Today I am going to talk about unsung freedom fighter of India. Hazrat Tipu Sultan, also known as the Tiger of Mysore, was the ruler of the kingdom of Mysore based in the South India. He was a pioneer of rocket artillery. Tipu was instructed in military tactics by the French officers in the employ of his father Hyder Ali, who was the Muslim ruler of the Mysore. Tipu introduced a number of administrative innovations during his rule, including his coinage, a new Muladi lunar calendar, and a new land revenue system, which is initiated the growth of Mysore's silk industry. Tipu expanded the iron-caged Mysorean rockets and commissioned the military manual Fatul Mujahideen. He is considered a pioneer in the use of rocket artillery. Tipu Sultan deployed the rockets against the advance of the British forces and their allies in the 1792 and the 1790 siege of the Srirangapatna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Abdul Malik from this side. Today I will be speaking about two freedom fighters. Their name is Mr. Farid Ul-Zama and one more is Fakir Majnun Shah Burhan. These were the two freedom fighters who also helped Mahatma Gandhi in the freedom struggle. One of the freedom fighter, whose name is Farid Ul-Zama, he was born in Visakhapatnam and Andhra Pradesh as a fighter. He's from Andhra Pradesh who followed the Gandhian principles through his life. He later became re-owned as the Vishakha Gandhi. जैसा डालते थे उसे कॉन्सिक्वेंसी केस बोलते थे. 3 कॉन्सिक्वेंसी केसेस रेजिडेंटली पेशवार कॉन्सिक्वेंसी केस फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इस वक्त मैं कादरिया ईदगाह मैदान में हूँ और यहाँ फॉलकॉन इंस्टीट्यूशंस में तालीमी मैदान में एजुकेशन फील्ड में जो इनकलाब बर्पा किया है, उस इनकलाब को अमली तरीके से आज देखने का मौका मिला. यहाँ 2 रोजा इन्होंने मुख्तलिफ अपने पास पढ़ने वाले तलबा की सलाहियतों से आवाम को, मुसलमानों को बिलखुसूस मुतारफ कराने के लिए 2 रोजा यहाँ इन्होंने निज़ाम बनाया है, जिसमें अलग अलग सरगर्मियां. एक तो यहाँ के स्टूडेंट्स ने अपनी ज़हनी और जहानत की सलाहियतों का जो मुजाहरा किया है, खुसूसन साइंस में और टेक्नोलॉजी में, और अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जो मॉडल्स तैयार किए हैं वो वाकई काबिले दीद है और काबिले मुबारकबाद है और एहसास कमतरी से निकलने का एक बहुत बड़ा जरिया. हमने इन कॉलेज के तलबा में लड़कियों का अलग सेक्शन बनाया गया है, जहां लड़कियों ने मेहनतें करके अपनी ज़हनी सलाहियतों का मुजाहरा करके अलग अलग चीजें, अपने मॉडल्स तैयार किए हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें हमने भी देखी और लड़कों ने अलग से बनाई हैं. और तकरीबन उन तमाम के असल मुहर्रिक और असल बानी जो है वो 600-700 साल पहले उसके बानी असल में मुसलमान, और चूंकि तारीख भुला दी गई और जो असल हमारा सरमाया था वो हमसे छीन लिया गया, ज़हनो दिमाग से भी महू कर दिया गया. तो फॉलकॉन इंस्टीट्यूशन की ये जो है बहुत अच्छी पहल है कि अपनी पुराने उन तमाम साइंटिस्ट और उन तमाम इल्मी मैदान में नई नई चीजों के मुजीदीन, ईजाद करने वालों का तारुफ और अपने स्टूडेंट्स की सलाहियतों को निखारने का एक बेहतरीन मौका और उसका मुजाहरा यहाँ एक शानदार पहल है और एक इनकलाब है. दूसरी तरफ क़िरात नात का मुसाबका
मुकाबला, और तीसरी तरफ जो है दाखिले के मौके पर वहाँ मुस्तकबिल में जो साइंस और तरक्की करने वाली है, जहां हम बगैर ड्राइवर के कार चलाएंगे, जहां बगैर ड्राइवर के हम अपना मोबाइल, बगैर इंस्ट्रूमेंट के मोबाइल का इस्तेमाल होगा, और बगैर किसी फर्द के इमारत खड़ी कर ली जाएगी, और कपड़ा जो है गुस्ल खाने में जाते हुए एक बटन दबा के जाएं, वापसी पर कपड़ा तैयार मिले। ये मुस्तकबिल में जो आने वाली चीजें हैं, इनसे भी उन तलबा को न सिर्फ वाकिफ कराया जा रहा है, बल्कि उन तलबा से वो काम अभी से करवाया जा रहा है। ये एक ऐसी पहल है जहां आम तौर से हमारे अंदर मौजूद सलाहियतों को निखारने का काम नहीं होता, उसे उभारने का काम नहीं होता। असल टीचरों की या उस्तादों की का असल कमाल जो है अंदर की सलाहियतों को निकाल बाहर करना, और हमें लगा कि वो काम जो है वो फाल्कन इंस्टीट्यूशंस के जरिए हो रहा है, उसका अमली हम मुजाहरा हमने किया है। अल्लाह ताला नजर बस से बचाए और इसको हर तरह की तरक्कियात से माला माल फरमाए, और अल्लाह ताला जो है मजीद इनके लिए तरक्की के रास्ते आसान फरमाए। मुझे निहायत खुशी हुई कि आज जो है फाल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की जानिब से एक एजुकेशनल कॉन्क्लेव मुनक़िद किया गया है। जैसा कि आपने कहा कि यहाँ कुरान भी है, साइंस भी है, साइंस जो भी है वो कुरान की वजह से ही है। फाल्कन ग्रुप जो है हर साल कुछ ना कुछ प्रोग्राम करती है। ये प्रोग्राम जो है माशाल्लाह एक अनोखा प्रोग्राम है। इससे मैं समझता हूँ कि काफी बच्चों को, खासकर स्टूडेंट्स को जो है इससे बहुत ही फायदा होगा। और जो है मैं अभी पूछ रहा था हमारे अब्दुल सुभान साहब, डॉक्टर अब्दुल सुभान से, कि इसमें जो है कई कॉलेजेस के बच्चे भी जो है इसमें शिरकत कर रहे हैं। ये निहायत खुशी और मुसर्रत की बात है। इससे जरूर ब जरूर हमारे स्टूडेंट्स में एक जज्बा पैदा होगा कि ऐसी चीजें हमको भी करनी चाहिए। काफी मुझे यहाँ देखकर जो हैरत हुई कि 1500 सदी की चीजें भी जो है यहाँ दिखाई जा रही है। जैसा कि फाल्कन में ये एक बहुत अच्छा इनका इक़दाम है। ये अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे। कोशिश यहाँ पे ये है कि कैसे तलबा और तालिबात के बीच में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट की जो बात होती है, हमारे पास हमने जो आपने देखा हॉल ऑफ फेम, वॉल ऑफ फेम ने दिया, जहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ बच्चे डॉक्टर्स हैं, उनकी फोटोज लगे हैं, लेकिन हमारी गाड़ी वहां पे रुक गई है। हमारे पास इंजीनियर IIT में बच्चे NIT में पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हम अब आज के डेट में जो जरूरत है हमको साइंटिस्ट की, इनोवेशन की, क्या हमारे बच्चे वो कर सकते हैं? क्या वो ज़ौक़ बच्चों के अंदर नहीं है? उसको हम कैसे जगाएं? पहले वो हम तारीख को यूज करते हुए कर रहे हैं, जिसमें बच्चे आप देखेंगे 7th सेंचुरी, 8th सेंचुरी, 9th सेंचुरी, ऐसे अनइमेजिनेबल इनोवेशंस जो पूरी दुनिया को बदल दिए थे उस वक्त, वो उसको यूज करते थे। जहाँ पे हमारे इस्लाफ थे जो उन्होंने वो कारनामे किए थे, और आज हम नहीं कर रहे। हमारे पास पिछले 100 साल में एक भी मुस्लिम साइंटिस्ट आपको नहीं मिलेगा जो साइंस में नोबेल प्राइज लिया है। ये हमारे लिए शर्म की बात है। और हम कैसे एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे, हम कैसे लीडरशिप की बात करेंगे? क्योंकि जब तक कौम और मिल्लत के पास ये नए जदीद टेक्नोलॉजीज नहीं रहते, इन्वेंशन नहीं रहते, वो कौमें कभी भी लीडरशिप का रोल अदा नहीं करती। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बच्चों से हम एक नई जनरेशन को तैयार करें। ये बच्चे ही इंशाल्लाह नेक्स्ट जनरेशन का जरिया बनेंगे। कोशिश है AI, AR, VR, ऑगमेंटेड रियलिटी का जो हमने कर रहे थे, वर्चुअल रियलिटी जो हम दिखा रहे थे, ड्रोन्स, रॉकेट, एवरीथिंग जो हम कर रहे हैं, ये आज की टेक्नोलॉजी है। हम बच्चों को दिखाना चाह रहे हैं, बच्चों को फील कराना चाह रहे हैं। बच्चे इससे कुछ ना कुछ एक इंटरेस्ट पैदा करके जाएंगे, और इंशाल्लाह कोई ना कोई अगर आगे चल के साइंटिस्ट बनेगा तो हमारा मुझे लगेगा कि हमारा हक अदा हो गया इंशाल्लाह। आज के प्रोग्राम में क्या क्या गैलरीज हैं, यहाँ पे क्या क्या देखने? आज जहाँ पे अभी कई स्कूल से बच्चे आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, पेरेंट्स आ रहे हैं, अलग अलग तरफ से लोग आ रहे हैं। यहाँ पे अभी एक इन्वेंशन गैलरी है जहाँ पे 111 मुस्लिम इन्वेंशंस लगे हुए हैं, और 100 से ज्यादा मुस्लिम साइंटिस्ट का अलग से गैलरी है। इसके साथ साथ 75 मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स की अलग से एक गैलरी है, जिसको लीडर्स गैलरी बोलते हैं। और हमारे पास फ्यूचर रेडियो एक्सपो है, जहाँ पे जो न्यू एज टेक्नोलॉजीज हैं,
ये तमाम वहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं। हमारे पास हॉल ऑफ फेम है जहाँ पे बच्चों के जो कारनामे हैं, जो अचीवमेंट्स है, उसको दिखाया जा रहा है। ये अभी चल रहा है। वोकल्स ऑफ इस्लाम इज ए कॉम्पिटिशन फ्रॉम डिफरेंट स्कूल, बिटवीन डिफरेंट स्कूल, ऑलमोस्ट 35 स्कूल्स आर कॉम्पीटिंग, और यहाँ पे उसका फिनाले चल रहा है जहाँ पे इंशाल्लाह जो बच्चे विनर्स रहेंगे, प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल के बच्चों को हम इनामात दे रहे हैं। करीब 9 लैपटॉप टैब अवार्ड के तौर पे बच्चों को दिया जाएगा, 9 टैब्स बच्चों को दिया जाएंगे एज ए इनाम, और 9 स्मार्ट वॉचेस, क्योंकि 3 अलग अलग कॉम्पिटिशन है, इस हिसाब से बच्चों को इनामात दिए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कॉम्पिटिशन भी चल रहा है, काफी अच्छा ज़ौक़ है बच्चों के अंदर, काफी रुझान मुझे दिख रहा है, पॉजिटिव है, और काफी बड़ा जोश और वल्वले के साथ बच्चे कल 2 प्रोग्राम है बहुत खास है। एक है प्रोफेशनल्स टू लीडर, हमारा जो प्रोग्राम है जहाँ पे हम चाह रहे हैं पूरे प्रोफेशनल जुड़े, खासतौर पे इसमें अलुमनाई, फाल्कन के अलुमनाई को इनवाइट किया गया है, जहां से उनको हम एक विजन देंगे कि दे हैव टू टेक द रोल ऑफ ए लीडर। और दोपहर का मेन कॉन्फ्रेंस है विच इज गोइंग टू बी द कंक्लूडिंग कॉन्फ्रेंस, फिक्र मुस्तकबिल कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे हिंदुस्तान भर की मायानाज शख्सियतें आ रही हैं जो इंशाल्लाह हमारे कौम मिल्लत के लिए एक नया रास्ता देंगी, एक रास्ता जो हमारे बेहतर फ्यूचर का जरिया बनेगा इंशाल्लाह। Babylonian number system, which was used to represent the decimal numbers. This is one more type of number system. It was used to represent decimal numbers. Who has started this? Al-Khwarizmi, Muhammad Musa Al-Khwarizmi. Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi. What is this? This is decimal. This is a decimal point model. This is a place value chart. It is used to represent the places of the numbers. It is the integer part and it is a decimal part. It is an astrolabe which was used in olden days to locate the places. It is a calendar which was used in olden days to represent the dates, timekeeping, etc. It is the decimal and fractional value of numbers. This is the fractional value and for the decimal value of the number. Assalamualaikum. Our topic is anesthesia techniques. So Muhammad Ibn Zakaria al-Razi, he was the first Muslim physician who invented anesthesia. He used many substances like opium poppy, mandrake, hemlock, henbane and black nightshade. These all are illegal now, so we can't show them manually. So now he used to make mixture of all these topics, and he used a sponge like this. He soaked the sponge in that mixture, and after soaking the sponge in that mixture, he sun-dried it. After sun-drying it, he placed it in a humidifier like this. He placed it in a humidifier. After this, when he wanted to give anesthesia, he tastes like this. And through inhalation, anesthesia was given to the patient. Through inhalation, anesthesia was given to the patient. जहाँ यूरिन गलती रहती है, हैंड्स एक्यूमुलेट होकर रहता, एक्यूमुलेट नहीं होकर रहता, उन्हें नॉन डायबिटिक नॉर्मल सेशन. We have made paper out of sugarcane. Me and my 2 teammates. So first we have to take some sugarcane, then we have. In this kind of spice. Mashallah. Assalamualaikum. How are you? I'm fine. How are you?
Our model is Archimedean screw. It was invented by Archimedes during 3rd century. He was a Greek mathematician, physicist, and an engineer. Later in 12th century, a Muslim scholar named as सही बोल रहे basically how it works or how it is that does not work. whatever it is. People will work inside. And this what is that? Exactly, our exhibition honors these early pioneers, showing how their invention inspired the world we live in today. Just as these great minds used their knowledge of machines to design tools and machines, we too are using technology and creativity to build robots that can serve humanity, improve lives, and solve challenges for our society and